Good morning, fifth class. As you know that we are reading which chapter? India got her freedom. Okay. So today we will discuss about beginning of India's freedom struggle. Clear? So students, watch this video attentively. आज हम बात करेंगे कि किस तरह से इंडिया ने अपनी आज़ादी हासिल की। ओके और उससे पहले उन्होंने जितना स्ट्रगल किया अबाउट द फ्रीडम वी विल गेट टू नो। इज दैट क्लियर? ओके, लिसन स्टूडेंट्स, in previous chapter we have studied about the revolt of 1857. okay, याद आया? yes, the revolt of 1857 brought, क्या लेके आया ये, क्या हुआ इससे? revolt of 1857 brought an end to the rule of East India Company in India. Got it? और आफ्टर दैट क्या हुआ? सून आफ्टर द कंट्री केम अंडर द डायरेक्ट रूल ऑफ, किसके डायरेक्ट रूल में आई? डायरेक्ट रूल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट. क्लियर? एंड लॉर्ड कनिंग was appointed the viceroy to carry out the administrative duties on behalf of the crown. Look at this carefully. This is the picture of Lord Viceroy. Lord Canning. ओके, क्यों? जब ईस्ट इंडिया कंपनी जिसका राज चल रहा था इंडिया में वो क्या हुआ? ख़त्म हुआ. तो उसके बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने यहाँ इंडिया को अपने अंडर में लिया और इन्होंने किसको अपॉइंट किया? लॉर्ड कनिंग को. ओके, कि वो महारानी के नाम पर क्या करेंगे? उनके बिहाफ पर क्या करेंगे? यहाँ पर काम करेंगे. ओके, सो आफ्टर दैट लिसन इट केयरफुली. दिस इज द पिक्चर ऑफ Queen. The revolt of 1857 was entirely crushed by the Britishers. And the British government, क्या किया British government ने? British government took over the administration of India. Got it? And after that, this was a huge blow to the Indians, and they realized the need to unite in their fight for freedom. ओके, क्या हुआ? जितना भी स्ट्रगल किया हुआ रिवोल्ट में 1857 में, उसमें क्या हुआ? सभी इंडियंस एक साथ इकट्ठे क्या हुए? जितने भी थे उनके आइडियाज़ से जो कम्युनिकेशन था वो एक दूसरे के साथ बढ़ता चला गया और उन्होंने रियली में रियलाइज़ किया कि हाँ, ब्रिटिश को हमें इंडिया से निकालना है और हम लोगों को एक साथ रहना है और हमें फाइट करनी है अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल. गॉट इट? ओके, so after that, this is the movement of social reforms. The British introduced Western education in India. आप देख सकते हैं. Indian society was ridden with social evils. ये हमारी सोसाइटी में बहुत सी सोशल इविल्स, बुराइयां बढ़ती जा रही थी. With Western education came increased awareness and a progressive attitude in the Indians. और इन्होंने क्या किया? अवेयर किए सभी लोग. और इसमें क्या थे? राजा राम मोहन रॉय ने वर्क किया इरेक्टिंग अनफेयर एंड जस्ट सोशल कस्टम्स लाइक सती एंड चाइल्ड मैरिज. ओके, कि जो सती सिस्टम था हमारी सोसाइटी में और चाइल्ड मैरिज, बच्चों का छोटी सी एज में ही शादी की जा रही थी, उन्होंने इसके लिए क्या किया? उनको रोकने के लिए अपनी मांग उठाई और उसके लॉ को भी पास कराया. राजा राम मोहन रॉय आप देख सकते हैं. ही फॉट फॉर वीमेन्स राइट इन टू इनहेरिट एंड होल्ड प्रॉपर्टी. It was due to his effort that the British government enacted a law in 1829 abolishing sati.
उसके बाद आए स्वामी दयानंद, ये भी सोशल रिफॉर्म है, जो कि क्या करते हैं, हमारी सोसाइटी में जितनी भी इविल्स थे और या जो भी बुराइयां थी उनके लिए इन्होंने क्या किया, उनको हटाने के लिए उन्होंने काफ़ी काम किया है. सो here is given the 4 images. First one is caste discrimination, idol worship, child marriage, and blind faith and superstition. These are the social evils. He founded the Arya Samaj. Okay, Arya Samaj meaning a noble society, when in 1875, to spread awareness about the need to destroy social evils in order to create a noble society. Got it? Now this one another. Ishwar Chandra Vidyasagar was a social reformer, an academician who worked relentlessly for the empowerment of women. Vidyasagar also proposed the Widow Remarriage Act 1856. He also encouraged women's education. Sir Syed Ahmad Khan worked hard for the progress and upliftment of the Muslim community. He founded the Aligarh Muslim University and insisted on education for women as well. Then Indian National Congress, ये कौन थे? एहो ह्यूम है ये कौन थे? इन रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर एओ ह्यूम एंड मैनी. इन्होंने क्या किया? In 1885, a retired British officer, A.O. Hume, and many Indian leaders came together to form the Indian National Congress, INC. First session of Indian National Congress at Mumbai. The first session of INC was held at Mumbai in December 1885 and was attended by 73 delegates. Congress leaders like Dadabhai Naoroji and Gopal Krishna Gokhale stood for the hopes and dreams of the Indian masses. You can see representation in the government and equal treatment in the army and civil services. And these demands were expressed through peaceful means and the leaders were thus called moderates. और जब ये शांतिपूर्वक जितनी भी डिमांड थी वो रखी गई गवर्नमेंट के सामने, तो ये लीडर्स किस में आए? मॉडरेट्स में आए. ओके, और ये रिगार्डेड एज एक्सट्रीमिस्ट. ये कौन थे एक्सट्रीमिस्ट? बिकॉज ऑफ देयर ओवरऑल एग्रेसिव स्टैंड. लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, ये 3 लीडर हुए. और the Lal Bal Pal tribe believed that Indian must achieve Swaraj and self-rule and not be ruled by anyone. इनको लाल बाल पाल के नाम से जाना गया. और ये महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड वल्लभ भाई पटेल. Now you can see moderates and extremists.
In the early phase of the INC, the moderates were in the charge of both demands of the party as well as execution of its action program. और इन्होंने क्या किया, देश को आज़ादी दिलाने के लिए अपनी डिमांड रखी. ओके, एंड मॉडरेट्स जो थे वो बिलीव करते थे कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स टू ब्रिंग अबाउट सोशल रिफॉर्म. These are Gopal Krishna Gokhale, Dada Bhai Nauroji and Vyomkesh Chandra Batterjee. उसके बाद क्या हुआ स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं, यू कैन सी a national movement could become successful only through a firm, strong and aggressive approach to get their demand fulfilled. और सभी सिटीजन्स क्या होने लगे, अब ब्रिटिश की जितनी भी पॉलिसी और एटीट्यूड था उनके खिलाफ वो इकट्ठा हुए और स्ट्रगल किया, उन्होंने फाइट की. They felt that the people had to secure their rights by fighting and by being organized. Lokmanya Tilak reached to common people with his newspaper Kesari and Maratha and made them aware to their rights. इन्होंने अपने न्यूज़पेपर बनाया और उस पर अपना लिखना स्टार्ट किया. Got it? एंड लोकमान्य तिलक डिक्लेरेशन, उन्होंने क्या डिक्लेयर किया, उन्होंने डिक्लेयर किया द ब्रिटिश गवर्नमेंट स्वराज इज माई बर्थ. ओके, एंड आई शैल हैव टू इट, और मैं इसे लेकर रहूँगा. स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा. ही ऑल्सो इंकरेज्ड पीपल टू सेलिब्रेट दीज इंडियन फेस्टिवल्स, एंड ही ऑल्सो इंकरेज्ड ओके पीपल टू सेलिब्रेट दीज इंडियन फेस्टिवल्स. आप देख सकते हैं, यू कैन सी foster brotherhood and bring about pride. ओके, उसके बाद द पार्टीशन ऑफ बंगाल किया गया, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश, द इंक्रीजिंग यूनिटी अमंग द इंडियन पीपल मेड द ब्रिटिश फील वेरी इनसिक्योर. लोगों की बढ़ती हुई यूनिटी से जो ब्रिटिशर्स थे वो इनसिक्योर फील करने लगे. दे स्टार्टेड यूजिंग द वेरियस टैक्टिक्स टू ब्रिंग अबाउट हैट्रेड एंड डिस्कॉर्ड अमंग द कंट्री मैन, और उन्होंने टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया. ओके, डिवाइड एंड रूल, उन्होंने इस पॉलिसी को यूज़ किया विद अ व्यू टू क्रिएट मोर टेंशन अमंग द इंडियंस पीपल, एंड द ब्रिटिश अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल ऑफ द हिंदू एंड मुस्लिम पॉपुलेशन इन बंगाल. देन इन 1905 में क्या हुआ, लॉर्ड कर्जन अनाउंस किया द पार्टीशन ऑफ बंगाल इनटू ईस्ट बंगाल फॉर द मुस्लिम एंड वेस्ट बंगाल फॉर द हिंदूज, और बंगाल को डिवाइड कर दिया. ईस्ट बंगाल में मुस्लिम का है और वेस्ट बंगाल हिंदू का है. द रीजन स्टार्टेड वाज बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टू पार्टीशंस प्रोविंसेस, और बंगाल को उन्होंने बिल्कुल डिवाइड कर दिया. एंड द इंडियंस वर नेचुरली outraged at this and strongly opposed the move. The British were forced to reunite Bengal in 1911 because of this united retaliation of the people. After that क्या हुआ, slowly उनके बाद महात्मा गांधी, ओके, खादी एंड चरखा बिकेम स्ट्रॉन्ग सिम्बल्स ऑफ नेशनलिज्म. इनका काफ़ी योगदान है हमारी इंडिया को आज़ादी दिलाने के लिए. पीपल क्या किया, जितने भी गुड्स थे ब्रिटिश के, उन्होंने उनको जला दिया गया. दिस मूवमेंट एंड लिसन, आफ्टर द डेथ ऑफ लोकमान्य तिलक इन 1920 में क्या हुआ, द रेन्स ऑफ द नेशनल मूवमेंट पास्ड ऑन द महात्मा गांधी. महात्मा गांधी
टाइम पीरियड ऑल्सो, क्योंकि 1915 में ये साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे और तब से इन्होंने देश की आज़ादी में काफ़ी योगदान किया। महात्मा गांधी लीड द नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। और उनके मेन जो थे क्या थे वो, ट्रुथ, नॉन वायलेंस, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट किया, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट एंड क्विट इंडिया मूवमेंट, अपोज्ड द ब्रिटिश पॉलिसीज। और ये जो जीवन की उन्होंने 3 चीज़ें हमें दी, ट्रुथ, नॉन वायलेंस और सत्याग्रह है। Clear this one? So you will watch this video attentively, and till then study here. And you can also make some notes. Okay students, so thank you and have a nice day.